محترم حاضرین، یہاں پر تشریف فرما آندھرا پردیش ریاستی اردو اکیڈمی کے چیئرمین ڈائریکٹر سیکرٹری صاحب، معزز حاضرین، اردو کی تنظیموں کے نمائندہ افراد، اردو زبان و ادب سے متعلق وہ تمام مقتدر شخصیات جو اس مشاورتی اجلاس میں شریک ہیں، آپ سب کی خدمت میں میرا آداب۔ میں آپ کے سامنے بہت مختصر وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اکیڈمی کیا ہوتی ہے، اکیڈمی کا منصوبہ کیا ہوتا ہے، اکیڈمی کا لائحہ عمل کیا ہوتا ہے، اکیڈمی کے پیش نظر اسکیمیں کیا ہوتی ہیں، اسے کس طرح بروئے کار لایا جائے تاکہ لسانی اقلیتیں جو ریاست آندھرا پردیش میں ہیں ان کا اعتماد موجودہ حکومت پر بحال ہو سکے، ان میں اعتماد کی فضا پیدا ہو سکے۔ آندھرا پردیش میں اس وقت پر وزیر اعلیٰ جناب وائس جگن موہن ریڈی صاحب کی جو حکومت ہے، اس میں تمام طبقات میں ایک طرح کی اطمینان اور جو ہے سکون کی فضا پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ جس طرح سے مالیہ اور سرمایہ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، جس طرح کی وہ اسکیمات اور نورتنال لائے ہیں، اس سے بہت سے لوگ خوش ہیں۔ یہاں پر لسانی اقلیتیں جو اردو کا طبقہ ہے، اردو کمیونٹی ہے، وہ اکیڈمی کے فعال نہ ہونے کی وجہ سے بے چین اور پریشان ہے۔ یہ اضطراب جو اردو کمیونٹی میں پایا جاتا ہے، یہ بحال ہونا بہت ضروری ہے۔ اردو بولنے والوں میں، اہل اردو میں بھی حکومت پر یہ اعتماد بحال ہونا چاہیے کہ موجودہ حکومت جس طرح سے اقلیتوں کے لیے، مائنورٹیز کے لیے کام کر رہی ہے، اسی طرح سے اردو بولنے والی آبادی کے لیے بھی اور اردو مسائل کی یکسوئی کے لیے سنجیدہ ہے، پابند عہد ہے، اور اردو والوں کے لیے اکیڈمی بہت ہی فعال اور کارگر ہے، سرگرم ہے۔ یہ جب یہ عوام میں تصور جائے، اس کے لیے اکیڈمی کو کیا کرنا ہوگا؟ اکیڈمی کے پاس جو اسکیمیں ہیں، اکیڈمی کا جو کیلنڈر 2018 میں چھپا تھا، اس کے تحت میں آپ کو ایک منٹ کے وقت میں پڑھ دوں گا۔ یہ آندھرا پردیش اسٹیٹ اردو اکیڈمی محکمہ اقلیت کی بہبود، حکومت آندھرا پردیش۔ آندھرا پردیش اسٹیٹ اردو اکیڈمی ایک خود مختار ادارہ ہے۔ اس کے قیام کا بنیادی مقصد ریاست میں اردو زبان و ادب کے تحفظ، ترویج، ترقی اور فروغ کے لیے کام کرنا ہے۔ اردو اکیڈمی کی سرگرمیاں ادبی اور تعلیمی ہیں، اور اس کی سرگرمیوں کا دائرہ کار اردو کے شعراء، ادیبوں، قلمکاروں، اردو کے کاس کے لیے کام کرنے والی تنظیموں، اردو طلباء، اردو صحافیوں، اردو اخبارات اور اردو خبر رساں اداروں تک محدود ہے۔ اردو زبان و ادب کے تحفظ، فروغ اور ترویج کے سلسلے میں آندھرا پردیش اسٹیٹ اردو اکیڈمی حکومت آندھرا پردیش حسب ذیل اسکیمات پر عمل پیرا ہے۔ ماہ نامے کی اشاعت، ریاست آندھرا پردیش نہیں، پورے ہندوستان کی اکیڈمیاں ہمارے سامنے ہیں۔ میں باور پوائنٹ پریزنٹیشن بھی لے کے آیا ہوں، آپ کے سامنے ہر یونیورسٹی کی ویب سائٹ کا URL بھی دوں گا اور اس کی اسکیمیں بھی بتاؤں گا۔ ہر اکیڈمی سے ایک میگزین شائع ہوتا ہے، جریدہ نکلتا ہے، ماہنامہ شائع ہوتا ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ حیدرآباد سے جو ماہنامہ آندھرا پردیش اردو میں نکلتا تھا، تو ریاست کی تقسیم کے بعد 2014 میں وہ بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ رسالہ نکلنا ہی نہیں شروع ہوا۔ تو ماہنامے کی اشاعت، مولانا ابوالکلام آزاد ایوارڈ اور ڈاکٹر عبدالحق ایوارڈ، کارنامہ حیات ایوارڈ اور بیسٹ اردو ٹیچر ایوارڈ، بیسٹ اردو اسٹوڈنٹ ایوارڈ، اردو ادیبوں، اسکالروں اور شعراء کی تخلیقات پر اشاعت کے لیے جزوی مالی اعانت، جو مینوسکرپٹس ہیں ان کے پبلشنگ کے لیے اکیڈمی کی اسکیم ہے کہ ان کو پارشل فائنینشیل اسسٹنس دیا جاتا ہے، یہ ہماری اسکیم میں موجود ہے۔ اسی طرح سے اردو کی شائع شدہ مطبوعات پر انعامات، اردو سے متعلق جاری اسکیمات کے بارے میں معلومات فراہم کرنا، اردو خبر رساں اداروں کو مالی امداد، اردو لائبریریز کو کتابوں کی فراہمی، اردو مشاعرے، سمپوزیم، سیمینارز کے لیے مالی اعانت، سرکاری اردو مدارس کو انفراسٹرکچر کے لیے مالی اعانت، اردو میڈیم کی نصابی کتابوں کی اشاعت، اردو لائبریریز اور ریسرچ سینٹرز کا قیام، اردو گھر اور شادی خانوں کی تعمیر، اردو رسائل و جرائد کی مالی اعانت، اردو انجمنوں اور کارکردگی کی رضاکارانہ تنظیموں کی مالی اعانت،
दक्कनी क्लासिकल और मॉडर्न लैंग्वेज की तरक्की और तरवीज, उर्दू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जर्नलिस्टों की माली इयानत, उर्दू किताबों की इशाअत, छोटे उर्दू अखबारात की माली इयानत, ये हमारी वो स्कीम्स हैं जो आंध्र प्रदेश अलग होने के बाद भी हमारे एकेडमी में मौजूद थे। जब इन स्कीमों पर अमल नहीं हो रहा है तो अहले उर्दू में एक मायूसी की लहर पाई जाती है। ये अगर एकेडमी बहुत कम रकम खर्च करके अवाम का एतमाद बहाल कर सकती है, अवाम में मुसलसल सरगर्मियों के जरिए लोगों में ये यकीन पैदा हो सकता है कि हमारी रियासत में भी एक एकेडमी मौजूद है और वो अपने इस काम को अंजाम दे रही है, ये एतमाद पैदा होगा तो हुकूमत का भी यही मंशा है कि जहां हर एक कम्युनिटी को इस हुकूमत ने मुतमईन किया है, उर्दू कम्युनिटी को भी मुतमईन करने के लिए मौजूदा हुकूमत आगे है। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि डिग्री कॉलेजेस में जहां पर किसी भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को बंद कर दिया गया सिवाय इंग्लिश के, लेकिन वजीर आला जगन मोहन रेड्डी साहब ने खुद कहा कि उर्दू मीडियम के मामले में कोई मुदाखलत न की जाए। हम लोगों ने कॉलेजों से रेजोल्यूशन लिख के भेजे कि अगर आप कहते हैं तो हम इसको इंग्लिश में बदल देंगे, लेकिन हमारे लिए अहकामात दिए गए और इसकी इजाजत दी गई कि उर्दू मीडियम को बहाल रखा जाए। ये रियासत आंध्र प्रदेश की मौजूदा हुकूमत की जानिब से एक ऐसा इक़दाम है जिसकी हम सब सताइश करते हैं और इसका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो तलबा जो उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए आगे तालीम को जारी रखने के लिए इससे सहूलत फराहम होती है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी रियासत आंध्र प्रदेश में तकरीबन 1 लाख बच्चे उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं। आपको ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। उर्दू एकेडमीज की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, आंध्र प्रदेश एकेडमी भी उसका रुकन है। इसकी जो है मॉनिटरिंग NCPUL के तहत होती है। NCPUL का एक दौर कीजिए या फिर दूसरे एकेडमीज के आप स्कीमों को, पॉलिसीज को, उनकी कारकर्दगी को एक नजर देखिए। हम आपके सामने मुख्तलिफ इंडिया की जो है एकेडमीज का आपके सामने प्रपोज ये लाए हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके जो है स्कीमें क्या क्या हैं, वो लोग उर्दू की फरोग के लिए क्या करते हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू एकेडमी के ज़ेरे तहत, उर्दू एकेडमी के मातहत उर्दू जबान, उर्दू अदब, उर्दू तहजीब और सकाफत सब शामिल हैं। सिर्फ तालीम नहीं है, तालीम भी शामिल है, लेकिन इसमें दूसरे कई महकमे भी शामिल हैं, दूसरे कई पहलू भी शामिल हैं, जिसमें उर्दू की तहजीब, उर्दू की सकाफत और उर्दू की क्लासिक की चीज़ों का बका और उर्दू के मजमूई तरक्की के लिए एक मरकजी इदारे की हैसियत अपने आप में है। चूंकि ये खुद मुख्तार इदारा है तो उर्दू के फरोग के लिए काम करने वाले रजाकार तंजीमों से राब्ता, उर्दू के लिए काम करने वाले दीगर इदारों से राब्ता, उर्दू के जो तंजीमें एसोसिएशंस हैं उनसे हुस्ने राब्ता करके आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत ज्यादा स्कीमें नहीं हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये तमाम स्कीमों पर अमल करने के लिए 2 करोड़ रुपए की भी जरूरत नहीं है, लेकिन 2 करोड़ आवाम खुश हो जाएगी। उन लोगों के अंदर एतमाद पैदा होगा, उन लोगों को यकीन होगा कि हमारी रियासत में भी एक एकेडमी है। मैं आपके सामने बताता हूँ, अगरचे कि हम सब लोग एक ही जज्बा लेकर बैठे हैं, सबके सामने उर्दू जबान की, अदब की फरोग और तरक्की की ही बात चल रही है। हमारी एकेडमियों में ना रसाइल आते हैं, ना हमारी एकेडमी की लाइब्रेरियों में रसाइल भी नहीं आते हैं, अखबारात भी नहीं आते हैं और उसकी कारकर्दगी जैसी है वो मालूम है। हम ये भी जानते हैं कि एकेडमी की लाइब्रेरियों के लिए किताबें कब खरीदी गई। हम ये भी जानते हैं कि रियासत जब से तकसीम हुई उसके बाद से माली किताबों की इशाअत के लिए माली इमदाद 2015 के बाद से दी ही नहीं गई। हम ये भी जानते हैं कि एकेडमी के जरिए जो मतबूआत हैं उस पर माली ताउन नहीं दिया गया। आपके सामने एक मिसाल देना चाहता हूँ, हमारी बिल्कुल पड़ोसी रियासत तेलंगाना है। तेलंगाना एकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब ने ये किया कि उन्होंने डिग्री कॉलेजेस की जो सिलेबस की किताबें हैं मुस्तकिल वर्कशॉप कंडक्ट किया और तमाम किताबें उर्दू में तर्जुमा करवाई। ये ऐसा काम है कि उसके लिए हम लोग उनको यहाँ से सलाम करते हैं और उनकी इस खिदमत का एतराफ और सताइश करते हैं। तो तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी में जिस तरह निसाबी किताबें हुई, आप ये बताइए कि हमारी रियासत में 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं उर्दू और उनके पास अगर निसाबी किताबें प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करता हूँ तो हमने उनको प्रपोजल अपनी जानिब से दे दिया। आप ये यकीन कीजिए कि हमारी रियासत आंध्र प्रदेश में ऐसी काबिल और मुख्तदर
अंदर बासलाहियत शख्सियतें मौजूद हैं जो किसी पर इन्हिसार किए बगैर न सिर्फ तर्जुमा कर सकती हैं, किताबों की तदवीन कर सकती हैं, इशाअत के लिए काम कर सकती हैं और पूरी किताबें हम लोग खुद तैयार कर सकते हैं किसी पर मुनहसिर हुए बगैर। हमारे रियासत आंध्र प्रदेश में खास तौर पर शहर कड़पा और जिले कड़पा और दूसरे मकामात पर ऐसे उर्दू के शोरा हैं, उदमा हैं कि उनके कलाम को देख लोग सब सारे हिंदुस्तान से उनकी सताइश और तहसीन करते हैं। उनके कलाम को सारी दुनिया में मकबूलियत हासिल हुई। ऐसी शख्सियतें हमारी रियासत आंध्र प्रदेश में मौजूद हैं। तो हम किसी पर मुनहसिर होने की जरूरत नहीं है, निसाबी किताबों की जरूरत सबसे पहली है। हमारे पास जो तलबा साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स या जो भी सिविक्स, हिस्ट्री, किताबें ही नहीं है। जब किताबें नहीं हैं तो वो लोग पढ़ेंगे कैसे? और दूसरी बात मैं बताता हूँ कि एक कॉलेज बन गया, उर्दू मीडियम का कॉलेज है, इमारत तामीर हो गई और पूरा जो है तलबा में दाखिला ले लिया, असातिज़ा नहीं है पढ़ाने के लिए। असातिज़ा के तकर्रुर के लिए इंटरमीडिएट में कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, पोस्ट ही सैंक्शन नहीं किए गए। मैं ये नहीं बताना चाहता कि सियासी बात हो जाएगी। गुज़िश्ता हुकूमत में कई कॉलेजेस कायम हुए, उससे पहले भी कई कॉलेजेस कायम हुए। एक कॉलेज तो ऐसा है सिर्फ प्रिंसिपल का एक पोस्ट है, तो अब कोई पोस्ट ही नहीं है, तो पढ़ाने वाले कहाँ से आएंगे? तलबा के लिए कैसे होगा? आपको ये बताता हूँ कि हमने उर्दू मीडियम में पढ़ा, हमारे बाप दादाओं ने उर्दू मीडियम में पढ़ा, हमारे आने वाली नस्लें उर्दू में पढ़ेंगी। हम अपनी जबान का इससे राब्ता उस्तवार रखेंगे जहाँ तक मुमकिन हो सके इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये उर्दू जबान हमारी है क्योंकि हम इस जबान में सोचते हैं। आप चाहे किसी भी जबान को सीख लीजिए, आप उस जबान में सोच नहीं सकते जो आपकी मादरी जबान ना हो। आदमी जिस जबान में सोचता है वही उसकी मादरी जबान होती है। तो मादरे मेहरबान उर्दू की इस एकेडमी में चूंकि मुशावरती इजलास है, हमारी एकेडमी एक खुद मुख्तार इदारा है और चूंकि मैं बताना चाहता हूँ कि ये अक़लियती जबान है, इस जबान को बोलने वाले माइनॉरिटी में है, बहुत कम तादाद में अक़लियत में है, इसलिए इस जबान को महकमे अक़लियती बहबूद में रखा गया। पूरे हिंदुस्तान की एकेडमियों का हमने जायजा लिया। हिंदुस्तान भर की 2 या 3 एकेडमियाँ ऐसी, उत्तर प्रदेश एकेडमी और राजस्थान एकेडमी, वो गवर्नमेंट की डायरेक्ट बॉडी और उनको पूरा इख्तियार है, वो किसी महकमे के अंडर में नहीं आती है। जबकि मैं बताता हूँ मध्य प्रदेश एकेडमी और पंजाब एकेडमी भाषा विभाग के अंडर में काम करती है जो कई लैंग्वेजेस को, इसी तरह गुजरात में है वो 8 लैंग्वेजेस की एक एकेडमी है, उसके तहत वो भाषा साहित्य एकेडमी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बकिया तमाम एकेडमियाँ या तो महकमे सकाफत और कल्चर में है या तो महकमे अक़लियती बहबूद में है। कर्नाटका की मिसाल ये है कि महकमे तालीम में थी एकेडमी, लेकिन उन लोगों ने मुसलसल नुमाइंदगी की और इसमें कामयाबी हासिल की कि उसको उन्होंने अक़लियती बहबूद में शामिल किया, क्योंकि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट वो है जो माइनॉरिटी लैंग्वेजेस से डील करता है। तो उर्दू के ये जितनी स्कीमें हैं इस पर अगर हम अमल नहीं करेंगे तो हमारी उर्दू दान आबादी में हुकूमत पर यकीन कैसे आएगा, हुकूमत पर उनका एतमाद कैसे बहाल होगा? सब तमाम तबक़ात हुकूमत से खुश हैं। अब जबकि हमारे वज़ीर आला वैएस जगन मोहन रेड्डी साहब ने हमारे माइनॉरिटी के लिए सब प्लान का ऐलान किया है, ऐसी सूरत में हमारी एकेडमी को फ़आल होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सरगर्म होना चाहिए। इसकी तमाम स्कीमें हमारे सामने हैं। एक जरीदा शाये करने की बात मैंने कही, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो अदब से सहाफ़त से दिलचस्पी रखते हैं, रिसाला मुरत्तब करने के काबिल लोग मौजूद हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं जो न सिर्फ अदब में बल्कि जो है ज़बान के मुख्तलिफ पहलुओं पर महारत रखते हैं। हमारे डॉक्टर अयूब हुसैन साहब हैं, ये जो है टीचर असातिज़ा को पढ़ाते हैं, ज़ेर तरबियत असातिज़ा की तदरीस करते हैं। हमारे जनाब हिदायतुल्लाह साहब हैं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा अब्दुल रफ़ीक साहब भी कुछ कहें और हमारे जनाब सैयद अताउल्लाह साहब हैं, मैं आपसे भी सुनना चाहूँगा। कुदरतुल्लाह कादरी साहब से, डॉक्टर नफ़ीउल्लाह खान साहब से, जनाब सादुर रहमान साहब हमारे मोहतरम हैं, आपके ख्यालात का भी मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो इस मुशावरती इजलास में ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए जैसे दूसरी एकेडमियों में होता है उर्दू कैलीग्राफी सेंटर कायम कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा खर्च की कोई जरूरत नहीं है, थोड़े से वक्त में तलबा खत्ताती सीख लेंगे और कैलीग्राफी सीखने से उर्दू जबान का फरोग होगा। और इसी तरह से हमारे पास जो एकेडमी है दूसरे एकेडमी से एमओयू कर सकते हैं।
हम NCPUL के साथ MOU कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो बताइए, हम तमाम अकेडमियों के डायरेक्टर, सेक्रेटरी और वहाँ के अराकीन और उसके मुताल्लिकीन से सबसे राब्ते में हैं। मुसलसल जितने लोग शोरा और उदबा हैं हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में, हम उनसे सबसे राब्ते में हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह इस वक्त दोपहर का निस्फुल नहार है, रोज़ रोशन है, इसी यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि हमारी ज़बान भी इसी तरह उरूज पर है और ऐसे उरूज पर है कि ये ज़बान काबिज़ा रहेगी। अगर आप इस ज़बान से वाबस्ता होते तो आपकी तरक्की की बात है, अगर आप इस ज़बान से वाबस्ता नहीं होते तो ये आपकी मर्जी की बात है। लेकिन उर्दू पर इतना एतमाद बहाल होना चाहिए, उर्दू के साथ इतना खुददारी और जो खुद एतमादी का रिश्ता उस्तवार होना चाहिए कि लोगों को यकीन पैदा हो और एतमाद बहाल हो। हमारी एकेडमी से हमारे जो है चीफ मिनिस्टर साहब और एकेडमी के चेयरमैन साहब हम आपसे भी यही ख्वाहिश करते हैं। आप दूसरे एकेडमीज को देखें, तेलंगाना रियासती एकेडमी सहाफियों के लिए वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप, अरूजदानी का कोर्स, कितने ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें मैं शरीक रहा ऑनलाइन। तेलंगाना एकेडमी जितने वेबिनार्स करती है उन वेबिनारों में मैं या तो रिसोर्स पर्सन की हैसियत से या पार्टिसिपेंट की हैसियत से शरीक होता रहा हूँ, क्योंकि उससे इस्तेफादा होता है। ऑनलाइन प्रोग्राम करने के लिए कोई रकम भी खर्च नहीं होती, बहुत मुख्तसर से रकम में आप पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एकेडमी एक्टिव होगी, एकेडमी के मुख्तलिफ स्कीमात पर अमल होगा। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। डॉक्टर फौजिया चौधरी, सब उर्दू जानने वाले उनको जानते हैं, एक ऐसी खातून थी जो बेंगलोर, जिनका वतन गुलबर्गा था, बेंगलोर की कर्नाटक एकेडमी में वो चेयरमैन थी और उनकी चेयरमैन की मुद्दत बहुत मुख्तसर थी। हर दिन वो एक प्रोग्राम करती थी, किसी अदीब से मुलाकात, कोई मुशायरा, कोई शेरी नशिस्त, किसी किताब पर मुज़ाकरा, कोई ड्रामा या किसी ड्रामे पर मुज़ाकरा या कोई और एक्टिविटी। रोजाना एक एक्टिविटी कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, मुख्तलिफ मकामात पर वहाँ के लोगों के साथ कीजिए। इस एक्टिविटीज से क्या होगा, लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा होगा। वाकई हमारी मौजूदा हुकूमत आंध्र प्रदेश की जो है वो उर्दू के लिए भी तरक्की कर रही है। मेरा आपका नाम है? वसीउल्लाह बख्तियारी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैलकुलेटर के बारे में अच्छे से तो क्या तो वर्क दिला सकते, वर्क दिलाने के लिए नहीं है कैलीग्राफी। यहाँ सीखले का है, हमारे अंजुमन अरबिक कॉलेज में एक इंस्टीट्यूट है, एक है, उसमें 300 लड़कियां से ऊपर सीख है। उनको क्या तो भी काम दिला सकते हैं। हमारी ज़बान को हम जो पढ़ते हैं काम सीखने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हमारी ज़बान को हमारे तहजीब और कल्चर से बाकी रखने के लिए, इसी मकसद के लिए हम पढ़ते हैं। आपको बताऊं, कैलीग्राफी अगर रोजाना आधा घंटा बच्चा सीखेगा, उसके अंदर सब्र, इस्तेकामत, खुशनवीसी, खुशखती और उसके अंदर तज़ीन और आराइश और ज़ेबाइश की खुसूसियात पैदा होंगी। आप 300 बच्चों को कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं हमारी ज़बान, क्या 1 लाख बच्चों की नौकरियां हैं? नहीं है, ये नामुमकिन है। हम सबकी रोजगार भाई, ये देखो, ये ओपन डिस्कशन है, ये किसी का भी आप जैसा बात करें, हम सब बहुत खुशी है, सब्र से सुन रहे हैं, सब्र से सुनेंगे, जो भी बात करेंगे उनका भी सुनेंगे। आपने बताया, इन्होंने बताया, और मैं भी थोड़ा पढ़ के लाया हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, सुनिए। ये